Hello everyone, this is Dr. Pooja Sharma. Welcome back in continuation of human resource planning. This is our unit 2 where we are discussing about a very important function of human resource management, that is human resource planning. In our previous lecture, we have discussed several things which are related to human resource planning. Started with what is human resource planning, why it is important, and what are the various types of objectives, benefits, reasons, different types of levels, and what kind of human resource planning is being done at different level. And ultimately, when we ended our session, we were discussing about human resource planning process. That is very important to understand, and we started it with environmental scanning. As I've already told you, whatever process we are studying, first thing is very important to analyze our internal as well as the external environment. Then we talked about organization objectives and policies, then demand forecasting and supply forecasting, then human resource programming, then human resource planning implementation, control and evaluation, and finally the decision making related to the planning, that is whether we are getting the shortage as an outcome or are we going to get the surplus as the outcome of this particular process. So students, मैंने आपको कल के सेशन में ये चीज बोली थी कि हम क्या करेंगे, हम डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड्स और सप्लाई फोरकास्टिंग के मेथड्स जो हैं वो अलग से स्टडी करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने ये चीज समझी थी कि डिमांड फोरकास्टिंग क्या होती है ना, और सप्लाई फोरकास्टिंग होती क्या है. अब हम उसकी टेक्निक्स को स्टडी करेंगे कि what are the various methods which are available, or which certain methods which various companies are using. So we are starting with demand forecasting techniques, and we understand this thing that demand forecasting is talking about the requirement of quality and quantity of people. As we have taken the example of Bharat Petroleum Corporation Limited, they actually gone through with the process of from public sector unit to privatization. So people were in surplus amount. There were certain new business units were emerged. So what situation came in front of them? Existing employees will be able to handle the new responsibilities. That means a person who is having the background of chemical engineering or mechanical engineering and they are having the experience specifically working at refinery unit, are they going to handle retail properly? So यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो लगता है कि will it be a justified thing, will it be a right thing that we have actually generated new positions, but people who are with us are the appropriate for that particular position. अब केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और उसके लिए जो जॉब ऑफर है वो आपने उनको रिटेल स्टोर को मैनेज करने का ऑफर जो है वो आपने उनके सामने प्रपोज किया है, या नॉट, आई वुड नॉट से दैट प्रपोज किया है, वो एक प्लेस इमर्ज हुई है बिकॉज अभी न्यू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स जो है वो उनके बारे में प्लानिंग की जा रही है. तो ऑब्वियसली योर आंसर विल बी नो, that chemical engineering background person might not be able to handle the retail outlets, because for retail we need someone who understands the retail outlets, who understand the kind of footfalls one can have, who understand each and every aspect where retail business can run smoothly with the brand name of BPCL. Right. And the another thing, in a refinery business, they have never thought of satisfying the consumer needs or scaling up the number of consumers or number of customers. But if sales and distribution department has now emerged, so again the kind of skill set which people are having, which existing people are having, will that be appropriate for the new position? Again there is a question mark. So in that case, what had happened in the story, what had happened, that they were having surplus staff, first thing, but parallelly they have come up with the new opportunities, right? So again I'm repeating, demand forecasting is the process of estimating the future quantity and quality of people required.
And now we are actually going to talk about various techniques which are related to demand forecasting, right? First thing which we are starting with, it is managerial judgment. So when we are talking about managerial judgment, तो जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा होगा आपको कि some judgments has been taken by the management, राइट तो वही चीज है कि मैनेजर्स सिट टुगेदर डिस्कस एंड अराइव एट अ फिगर विच वुड बी द फ्यूचर डिमांड ऑफ लेबर. It involves two approaches, bottom up approach and top down approach. In first means in bottom up approach, line managers submit their departmental proposal to top managers who arrive at the company forecast, and in top down approach, top managers prepare company and departmental forecasts. So these forecasts are reviewed by the departmental heads and they agreed upon certain types of decisions. So here what I want to say कि ना तो टॉप डाउन अप्रोच जो है वो अच्छा है, ना ही ना ही बॉटम अप अप्रोच जो है वो अच्छा है. What will be the better? The combination of both. है ना, the combination of both will be the appropriate approach. So here HR managers prepare the company forecast, है ना, means they consult with the HR department and then unanimously arriving on certain decisions, right? So यहाँ पे हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, there is bottom up, top down, managerial judgment, but with the discussion and the HR manager will be helping them in deciding the forecasting. Then next thing come, that is about रेशियो ट्रेंड एनालिसिस. तो अब रेशियो ट्रेंड एनालिसिस हम किस तरीके से समझेंगे कि जैसे आपको पता है कि रेशियो ट्रेंड एनालिसिस जो है वो उसमें हम क्या करते हैं, पिछले रेशियोज के बेसिस के ऊपर इस बार के रेशियोज का पता लगाते हैं. ठीक है, पिछले जो भी हमारे रेशियोज रहे हैं वो बेसिस के ऊपर हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हम फ्यूचर को फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बाय मेकिंग सम अलाउंसेस फॉर चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन और इट्स मेथड्स. ठीक है, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि किस तरीके से हम इस चीज को फोरकास्ट जो है वो करेंगे. सो टू अंडरस्टैंड द डिमांड फोरकास्टिंग स्टूडेंट्स, लेट्स डू दिस विद एन एग्जांपल. Here I have written years where I'm talking about, you know, previous 3 years, then previous 2 years, last year, and then next year, then we are forecasting for the coming years. So कुछ actual data हमारे पास में है और कुछ हमारे पास में और उसके साथ में हम जो है वो फोरकास्टिंग करने वाले. सो नाउ इन प्रोडक्शन का कॉलम वी आर एबल टू सी दैट 1500 यूनिट का प्रोडक्शन है, देन 1800 का है, then 2000 यूनिट्स हैं, then 2200 है, then 2500 है, then 2750 है, then 150, 180 and then again 180, then हमने बात की 200 प्लस की, देन हमने बात की 210 एंड देन 230. ठीक है, तो थोड़े अलाउंसेस के साथ में हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, this thing we are able to see this thing. All of you can see कि यहाँ पे हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमें we are able to see the ratios. ठीक है, ratios. ठीक है, in proportion to the employees. ठीक है, देन इसके बाद में जो हमारा दूसरा मेथड आता है, आई मीन जो हमारा थर्ड मेथड आता है, विच इज टॉकिंग अबाउट द रिग्रेशन एनालिसिस. ठीक है, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस जो है वो भी स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है और रिग्रेशन एनालिसिस जो है वो भी जो है वो स्टैटिस्टिकल टूल के ऊपर बेस्ड है ना. रेशियो रिग्रेशन इज मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड वेयर one line will intersect the things. यानी रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर क्या होगा, the firm first draws the diagram and the relationship between sales and workforce size. Sales and workforce size.
right? And when we are talking about sales and workforce size, a line that cuts right through the center of the points on the diagram by observing the regression line, one can find out the number of employees which are actually required in the organization. ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर हमें ये पता लगेगा कि कितने एम्प्लॉयज का जो है वो जरूरत है। रिग्रेशन जो है उसके अंदर से हमें ये भी पता लगता है कि अब जैसे सेल्स है ना, तो सेल्स अपना क्या हो गया, सेल्स अपना एक डिपेंडेंट फैक्टर हो गया, ठीक है, जिस यानी वर्कफोर्स अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में होगा तो हमारे लिए सेल्स जो है वो करना आसान होगा, ठीक है। सो देयर इज दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप is also actually existing. One more thing which I talk about the regression जो है वो कई तरीके के होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि सेल्स इंप्रूव करनी है तो उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का हमें जरूरत है, ठीक है। फिर हमें प्रॉपर रिसोर्सेज भी जरूरत है, यानी प्रोडक्ट जो है वो भी अच्छे से बनना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद में हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी का भी जरूरत है। तो एक इस तरह से एनालिसिस जो है वो भी किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो फैक्टर्स के बारे में ही बात कर रहे थे, इसलिए जो ट्रेंड लाइन हमको मिलेगी जो इंटरसेक्ट करेगी सेल्स को और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, वहां पे हम डिटरमाइन करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स का इस बार हमें रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम, इसके बाद में आता है डेल्फी मेथड। अब डेल्फी मेथड के बारे में तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि व्हाट इज डेल्फी मेथड। डेल्फी मतलब जहां पे एक्सपर्ट की कमिटी जो है वो बैठती है और फिर उस चीज को लेकर के डिस्कशन जो है वो किया जाता है ना। तो डेल्फी मेथड जो है वो इसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट जो है वो पर्सनल नीड्स को फोरकास्ट करते हैं और फोरकास्ट करने के बाद में वो नंबर्स जो है वो जनरेट करते हैं। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट इज गोइंग टू सिट एंड HRP एक्सपर्ट्स एक्ट एज इंटरमीडियरीज, summarize the various responses and reports the finding back to the expert, and the expert are surveyed again after they receive the kind of feedback and summarize and survey, and this is being repeated until the expert opinions begin to agree, है ना। क्या हो गया, ये क्वालिटी सर्कल हो गया जहां पे अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट लोग जो है वो बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं, फिर उन डिस्कशंस की रिपोर्ट जनरेट हो रही है, फिर वो रिपोर्ट जनरेट होकर फिर से उनके पास में जा रही है, फिर से करेक्शंस आ रहे हैं, एंड देन अल्टीमेटली वी आर रीचिंग अपॉन सर्टेन टाइप ऑफ कंक्लूजन। देन इसके बाद में हम बात करते हैं वर्क स्टडी टेक्निक के बारे में, और जब हम वर्क स्टडी टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, सो दिस टेक्निक can be used when it is possible to apply work measurement to calculate the length of operation and the amount of employees required. I again repeat, length of operation and the amount of labor required. And the starting point in a manufacturing company is it is a production budget and prepared in terms of volume of this saleable products for the company as a whole or the volume of output for the individual department. The budget of productive hours are then compiled using standards are for direct labor, and the standards are per unit of output are then multiplied by the planned volume. आई नो किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम चीजों को लिख के समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड एंड लेट अस सिंप्लीफाई इट। सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट थिंग, इट इज प्लान्ड आउटपुट for next year. Planned output for next year. Say for example, it is 20,000 unit. Here, number 2, which is talking about standard hours per unit.
एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं। प्लान्ड आवर्स फॉर द ईयर, ठीक है, प्लान्ड आवर्स फॉर द ईयर इट इज 1 लाख। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 5 डेज इन अ वीक है और एक दिन के अंदर हम 8 घंटे काम करते हैं, तो 5 दिन के अंदर हम 40 आवर्स के लिए काम करेंगे। 40 आवर्स तो एक वीक का 40 आवर्स हो गया, तो 52 वीक के कितने आवर्स हो जाएंगे ना, लाइक दिस। जो स्टैंडर्ड आवर्स जो है, जो प्लान्ड आवर्स जो है, वो इस तरीके से डिसाइड किए गए होंगे। शिफ्ट्स के अंदर काम हो रहा है, तो सपोज 24 घंटे अगर काम हो रहा है, तो द कैलकुलेशन विल बी डन बाय in that particular manner. Then productive hours, so when we are talking about productive hours per man per year, ठीक है, it is allowing, it is allowing normal overtime, absenteeism, and idle time. ठीक है, this is 2000. Ultimately, number of direct workers required will be 50. And how the 50 will come? 1 lakh divided by 2000. ठीक है, तो this is what? This is about work study method. ठीक है, आई होप नाउ आई एम क्लियर। देखो, प्लान्ड आउटपुट नेक्स्ट ईयर का क्या है, फिर स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट जो है वो क्या है, एक यूनिट को बनने में 5 घंटे लगेंगे। प्लान्ड आवर्स फॉर द ईयर 1 लाख है। प्रोडक्टिव आवर्स पर मैन पर ईयर 2000 है। एंड नंबर ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स 1 लाख विल बी डिवाइडेड बाय 2000 एंड देन वी विल बी इन नीड ऑफ 50 पीपल। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक। ठीक है, यहां से हमें किसके बारे में पता लगा, हमें डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में पता लगा कि डिमांड फोरकास्टिंग की अलग अलग टेक्निक्स होती है। इसमें हमने मैनेजरियल जजमेंट देखा, जहां पे हमने बॉटम अप टॉप डाउन अप्रोच देखा, लाइन मैनेजर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मैनेजमेंट वर्क टुगेदर एंड देन दे आर रीचिंग ऑन सर्टेन कंक्लूजन। रेशियो ट्रेंड, हमने एग्जांपल के थ्रू रेशियो ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने का किया कि हमने प्रोडक्शन और उस प्रोपोर्शन के अंदर, से फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर्स का हमने एग्जांपल लिया था इंस्पेक्शंस के लिए, तो प्रोडक्शन इज टू इंस्पेक्टर का हमने एग्जांपल जो है वो कंसिडर किया। देन रिग्रेशन उसी से मिलता हुआ लेकिन प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। Delphi, when experts are coming together and then they are discussing it. Work study, when we have planned the production for the next year, specifically it will be used for the manufacturing industry. हमने planned working hours देखे, फिर हमने ये देखा कि कितना टाइम लगता है एक यूनिट को प्रोड्यूस होने के अंदर, और फिर हमने टोटल आवर्स जो है वो देखा, नहीं वॉल्यूम भी देखा हमने, फिर हमने उसका कंपैरिजन जो है वो टाइम से करके देखा। एंड अल्टीमेटली हमें ये पता लगा कि वर्क स्टडी मेथड के थ्रू हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट हाउ मेनी पीपल विल बी रिक्वायर्ड। Okay, so when we are talking about HR supply forecasting, yes, so it is about existing human resource, it is about internal source of supply and external source of supply, जहां से हमें क्या पता लगता है कि हमारे पास में existing employees जो है वो कितनी क्वांटिटी के अंदर है और कितनी
क्वालिटी के अंदर है, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग एन आइडिया टू द मैनेजर विद द मीन्स ऑफ एस्टिमेटिंग नंबर एंड काइंड ऑफ एम्प्लॉय दैट विल बी रिक्वायर्ड, बट एग्जिस्टिंग दैट विल बी रिक्वायर्ड दैट वी स्टडी इन द डिमांड फोरकास्टिंग। और जो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप रहता है वो सप्लाई का रहता है कि अगर हम कुछ प्रोक्योर करना चाहते हैं या कुछ एम्प्लॉयज को प्रोक्योर करना चाहते हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है वो सप्लाई फोरकास्टिंग के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज starting, let's start it with the existing human resource, and when we are talking about present employees, it is greatly facilitated by HR audits, and HR audit summarizes each employee's skills and abilities, है ना। You see, for example, if someone is working in the banking industry and working in the loan department, he is working in the loan department but he also can handle the cash, वो कहाँ से पता लगेगा? वो एक पर्सन की स्किल इन्वेंट्री के थ्रू जो है वो हमें पता लगता है। तो वो स्किल एंड एबिलिटीज जो है वो समराइज होती है, एंड द ऑडिट्स ऑफ नॉन मैनेजर्स आर कॉल्ड स्किल इन्वेंट्रीज। ऑडिट्स ऑफ नॉन मैनेजरियल पोजीशंस आर कॉल्ड स्किल इन्वेंट्रीज, और जो मैनेजरियल पोजीशंस होती है उसके अंदर की जो इन्वेंट्री होती है उसे हम मैनेजमेंट इन्वेंट्रीज कहते हैं, ठीक है। सो वट एवर नेम इज यूज्ड इन इन्वेंट्री कैटलॉग्स ईच एम्प्लॉयज स्किल्स एंड एबिलिटीज, ठीक है। दोनों के अंदर ही जो सब हेडिंग होगी वो स्किल, एबिलिटी एंड नॉलेज के बारे में बात करेगी। इट गिव्स planners a comprehensive understanding of the abilities found in the organization workforce. So what is skill inventories? So it consolidates the information about non-managers in the organization, because information from skills inventory is used as input for transfer and promotion decisions. So it will be including personal data, age, gender, status of marriage, skill, education, job experience in the kind of training, salary and job history, special qualification, अगर कुछ special तरीके की training ले रखी है तो वो, then company data, then capacity of individual. They are talking about these type of list skills के बारे में जब बात हो रही है. So the popularity of skill inventory has increased with the with the generation of internet, as well as much more I would say ki the technology has emerged more and it is being incorporated in the business. So it has actually become easy to have such kind of inventory in today's environment. Then हम उसके बाद में बात करते हैं कि मैनेजमेंट इन्वेंट्रीज जो है वो क्या होती है। तो मैनेजमेंट इन्वेंट्रीज अल्टीमेटली हम उसके अंदर भी स्किल एंड एबिलिटीज के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये मैनेजरियल पोजीशन के लोगों के लिए, मैनेजरियल कैटेगरी ऑफ जॉब्स के बारे में जब बात होगी तो वर्क हिस्ट्री क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, प्रमोशनल पोटेंशियल कितना है पर्सन का, करियर गोल्स जो है वो क्या रहते हैं, पर्सनल डेटा जो है वो हमारे पास में उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन कितनी अवेलेबल है, तो पर्सनल की भी फिर कैटेगरीज जो है वो बन जाएगी। देन हाउ दे हैव मैनेज द टोटल बजट, करंट जॉब परफॉर्मेंस, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड जियोग्राफिक प्रेफरेंसेस, एंटिसिपेटेड रिटायरमेंट डेट एंड रिटायरमेंट टाइम, देन पर्सनल हिस्ट्री इंक्लूडिंग द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। सो इन्वेंट्रीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आर जनरली कंप्यूटराइज्ड and updated periodically, and updating is done at least once in 2 years, and before updating employees are encouraged to report major changes if any, if it is required, and in their careers such as acquisition of new skills, जैसे कब अपडेट होगी, जैसे किसी ने कोई एडिशनल कोर्स किया है, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है, तो वो टाइम पे उन चीजों को जो है वो अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पे अपना पहला टॉपिक जो है ना वो कवर होता है कि एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को हमने स्किल इन्वेंट्री और मैनेजमेंट इन्वेंट्री के थ्रू जो है वो हमने पता लगाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ सप्लाई के बारे में या इंटरनल सप्लाई के बारे में। सो स्टूडेंट्स, बी विद मी हियर। When we are talking about internal supply, so here in internal supply we can see 3 methods. One is inflows and outflows,
Second is turnover rate. Third is conditions of work and absenteeism. Number 4, it talks about movement among jobs. Internal source of supply, right? So when we are talking about the first method, it is about inflows and outflows. So हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनफ्लो क्या है? सोर्स ऑफ इनफ्लोज हम देखेंगे. ओके. So say for example, transfer in and promotion in. In and promotion in. ठीक है. और नंबर ऑफ पीपल, कितने लोगों का ट्रांसफर हुआ, कितने लोगों का प्रमोशन हुआ, वो सब चीज हम देखेंगे. फिर उसके बाद में सोर्स ऑफ आउटफ्लो, देन नंबर ऑफ पीपल. ठीक है. तो 12 लोग ऐसे हैं जिनका ट्रांसफर हुआ, 10 लोग ऐसे हैं जिनका प्रमोशन हुआ. ठीक है. तो अब हमें यहां से क्या पता लगेगा? करंट पर्सनल लेवल हमारा बढ़ के 250 ऑपरेटर्स का हो गया. अब बच्चों यहां पे ये चीज आप देखो कि 13 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया. दो लोग ऐसे हैं जो डिस्चार्ज हुए, 4 लोगों का डिमोशन कर दिया गया. ठीक है. 10 लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड हुए, 13 लोग ऐसे हैं जिनका प्रमोशन हो गया. ठीक है. तो यहां पे अपना जो टोटल इनफ्लो है वो हो जाता है 22. ठीक है. और अब हमारा जो टोटल आउटफ्लो है दैट इज 42. ठीक है. तो हमें क्या पता लगाना है कि इंटरनल सप्लाई जो है ना उसका कंडीशन क्या है. है ना. व्हाट इज द करंट सिचुएशन. तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि करंट लेवल ऑफ एचआर, उसमें से आप माइनस कर दो आउटफ्लो और उसके अंदर आप क्या कर दो, प्लस कर दो इनफ्लोस. ठीक है. तो हम देख पा रहे हैं कि 250 हमारे पास में टोटल लोग थे, उसमें से 42 का आउटफ्लो हो गया और 22 का हमारे पास में इनफ्लो हो गया. ठीक है. तो हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ सप्लाई है वो कितना है, 230 का. ठीक है. सो हियर इट इज वेरी क्लियर टू अस कि कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने हमारे पास में एग्जिस्टिंग थे, उसका हम इस इक्वेशन से कैलकुलेशन करके पता लगा सकते हैं. है ना. जब हमें ये पता लग जाएगा ना कि हमारे पास में एग्जिस्टिंग कितना है, तो भी हमारा फोरकास्टिंग के अंदर हमें हेल्प बहुत इजीली हो जाएगी. क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि हम प्रोपोर्शनल मेथड के थ्रू जा रहे हैं, हम रिग्रेशन मेथड के थ्रू जा रहे हैं कि हमें डिमांड कितनी है और देन उसकी अगर मैचिंग हमारी सप्लाई से हो जाती है ना. तो इस वजह से क्या हो जाता है, दोनों चीजें जो है वो साइड बाय साइड में चलती हैं. अब हम इसके बाद में देखते हैं टर्नओवर रेट. है ना. सो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टर्नओवर रेट,
तो कल मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सपोज किसी फर्म का टर्नओवर रेट 3% है, ठीक है। तो 3% रेट, टर्नओवर का रेट हमें बहुत आसानी से ये चीज बता देता है कि 3% है और 100 लोग वहां पे काम करते हैं, 100 पीपल आर वर्किंग देयर एंड द एट्रिशन रेट इज 3%, सो एवरी ईयर देयर विल बी 3 वैकेंसीज विल बी जनरेटेड। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है या सर्विसेज का लेवल बढ़ रहा है या बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है। नो, सोचो एकदम कांस्टेंट सिचुएशन के अंदर हम इस एग्जाम्पल को या हम इस मैथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इफ देर आर 200 पीपल एंड 3% attrition rate, that means there will be 6 new vacancies। 500 है, 3% है, तो भी सेम वे के अंदर कैलकुलेशन जो है वो हमारा होता है। तो इसके लिए इट इज अ फॉर्मूला बेस्ड मेथड, जहां पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेपरेशंस, ड्यूरिंग 1 year divided by average number of employees during the year। मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता लग जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल इफ इन अ ईयर 30 आउट ऑफ एन एवरेज फोर्स ऑफ 150 स्किल्ड पीपल दे एक्चुअली लीव द कंपनी, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, 150 में से अगर 30 लोगों ने छोड़ दिया तो टर्नओवर रेट जो है वो कितना हमें पता लगता है, इट इज 20%, है ना। एंड दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, देन द कंपनी विल हैव टू रिक्रूट, जितना रेट बढ़ता जाता है और जितना हमारा बिजनेस का एक्सपेंशन हो जाता है उसके अकॉर्डिंगली मोर पीपल टू बी रिक्रूटेड, ठीक है। देन कंडीशन ऑफ वर्क एंड एब्सेंटिज्म, है ना, द नेक्स्ट मेथड ऑफ supply forecasting which is talking about condition of work and absenteeism। Again, condition of work and absenteeism, so again for that also it will be a formula based thinking, number of persons minus day lost, it's day lost, है ना, divided by average number of people multiply by number of working days, multiply by 100, ठीक है। ये हमारा पता लग जाता है हमें कि अगर यहाँ पे, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इफ द एब्सेंटिज्म रेट इज 4%, सो ओनली 96 आउट ऑफ 100 पीपल आर अवेलेबल फॉर वर्क। The effect of absenteeism on future supply of labor should be allowed for, and trend in absenteeism should be analyzed to trace the cause and prescribe the remedial actions, ठीक है। 4% absenteeism है, इसका क्या मतलब है, 100 लोग काम करते हैं, ऑन एंड ऑफ 4 लोग रोज किसी न किसी वजह से लीव लेते हैं। सिंपल है, समझ में आया, यहां से भी हमें जो है वो पता लगता है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी लेवल की, एंड जब हम प्रोडक्टिविटी लेवल के बारे में बात करते हैं तो हम उसमें चीज देखते हैं कि एनी चेंज इन प्रोडक्टिविटी वुड अफेक्ट नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। That means increasing in productivity will reduce the requirement and the decrease in it would have the opposite effect. So let us assume the average sales per person in a year is around 5 lakh. Then reviews of changes in productivity level reveal that sales per person have been increasing at the rate of 10% per year. So in next year the projected sale will be क्या हो जाएगी, 5 करोड़, एंड देयर विल बी नो नीड फॉर 100 सेल्स पर्सन। क्यों, क्योंकि प्रोडक्टिविटी लेवल भी जो है वो इंप्रूव हुआ है। सो 5 करोड़ विल बी डिवाइडेड बाय 5 लाख, but rather for only 91 salespersons, since we expect in the increase of rupees 55 lakhs in the productivity of per person, right? So this was about the source of supply
इंटरनल सोर्स ऑफ सप्लाई का प्रोडक्टिविटी लेवल का मेथड. देन हम उसके बाद में बात करते हैं मूवमेंट अमंग जॉब्स. सो सम जॉब्स आर सोर्सेज ऑफ पर्सनल फॉर अदर जॉब्स. फॉर एग्जाम्पल, secretaries may be obtained by the promotion of word processor, and branch manager are obtained from a pool of section manager. So if, for example, we anticipate a need for 5 new branch managers 7 years from now, more than 5 potential branch managers should have entered the company this year, है ना. तो इसका क्या हुआ कि मूवमेंट ऑफ जॉब, यानी आप जब अपस्किलिंग भी कर रहे हैं या आप जब प्रमोशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टाइम के ऊपर भी आपका एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स का मूवमेंट किस तरीके से रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट है. ये मूवमेंट ऑफ जॉब जो है वो हमें इसी चीज के बारे में बताता है. देन इसके बाद में आता है अपना एक्सटर्नल सप्लाई. ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सप्लाई. एंड व्हेन यू आर लुकिंग अपॉन द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सप्लाई, दैट मींस न्यू ब्लड और न्यू एक्सपीरियंस आर वी रिक्वायरिंग, एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू टू रिप्लेस अ लॉस्ट पर्सन. उसका रिप्लेसमेंट हमें इंटरनल सोर्स ऑफ सप्लाई से नहीं मिल रहा है. और द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, है ना. जैसे मैंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का एग्जांपल आपके सामने दिया था ना कि अब बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाई हो गया है, आप रिफाइनरी से रिटेल के अंदर एंटर कर रहे हो. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ diversification. So diversification was one of the reasons that they went for the external hiring or external source of supply. So current HR assessment or the inventory, it is, assessment through extensive job analysis and provide the necessary input. What is job analysis? Why do we need job analysis? ये चैप्टर खत्म होते ही हम जॉब एनालिसिस के बारे में ही बात करेंगे. द असेसमेंट सपोर्ट्स इन्वेंटरी ऑफ दिस रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, एंड स्किल इन्वेंटरी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द नीड फॉर ट्रेनिंग, करियर प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग. सो ट्रेनिंग वी अंडरस्टैंड प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल चेंज से रिलेटेड हो सकती है. करियर प्लानिंग, यस, ऑर्गेनाइजेशन डू प्रोवाइड करियर प्लानिंग और करियर path वो लोग provide करते हैं. Succession planning we are going to discuss in the coming chapters, and inventory is supported by HR information system, HRIS. As when I was explaining you about HR forecasting or HR supply forecasting, that time I have also added this thing that जब से computerization हुआ है और internet on the things का time हुआ है, तब से चीजें और भी ज्यादा classified way के अंदर stored जो है वो लंबे समय तक रखी जा सकती है. Yes, so HR forecasting is basically based on future technological change. Is there any type of expansion plan? Business is going to diversify or not, or any new project is coming. And managing forecasted demand and supply, that means जो data हमारे पास में आता है, so are we going to freeze the recruitment, means it helps the immediate control and the future adjustment. And then phase wise reduction, अगर सप्लाई हमारे पास में ज्यादा है, लोग हमारे पास में ज्यादा है, काम कम है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, या मार्केट में हमारे प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, तो भी हमें कुछ स्ट्रेटेजिक एक्शंस जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड लेने रहते हैं. एंड विच आर एक्चुअली इंक्लूडिंग मीन्स हु टू बी फायर्ड, हु विल गिव द न्यूज, एंड वेयर मीटिंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट टाइम टू सूट, एंड what will be the suitable time, and the first information to whom in the company. So it is actually affected employee, co-employees, union, close associates, family members, managers and so on. Then उसके बाद में हम बात करते हैं phase wise, जब recruitment की बात करते हैं तो recruit the desired skills in first quarter to meet the requirement for the fourth quarter and till then. So obviously when we are talking about any of the managerial functions, so planning will be done accordingly. Then supply and separation sources to handle the future requirements. Who to join from outside, possible transfer, फिर possible work adjustment, promotions, demotions, retirements, resignation, present sickness and statistics. And then कोई भी अगर sickness है तो उसका seriousness जो है वो क्या है, vacancies against the path, death, if they have been any statistics related to sickness and its seriousness, मतलब any vacancies against the path, death, political, social, legal impact, employee migration and employment possibilities, changes of demography, means it is being said now India is young country. And why it is young country? Because 65% of the population of India is falling under the age category of 18 to 35 years old. 18 to 45 years old. That is why India is young country, because ज्यादातर जो लोग हैं वो youngsters हैं.
Then how are we going to managing the future demand or future surplus? So decision on permanent temporary requirement and what nature of work and outsourcing supply, knowledge input to manage the different positions. Then managing future supply, it is to assess if natural attrition can achieve the result, for example retirement, and whether action of voluntary retirements, golden handshake are needed. And to assess its डीलिंग विद सरप्लस ऑफ मैन पावर थ्रू द रिट्रेंचमेंट, मतलब टर्मिनेशन है या को अल्टरनेटिव जॉब ऑफर भी नहीं है देने के लिए, और इट इज गोइंग टू बी परमानेंट इन नेचर. सो टर्मिनेशन ड्यू टू जॉब बिकम्स द रेड्यूडेंट. अब वो पोजीशन अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नो अल्टरनेटिव जॉब्स जो है वो हम हमारे पास नहीं है ऑफर करने के लिए, और इट इज गोइंग टू बिकम परमानेंट इन नेचर. ये सारी स्टडीज की जाने के बाद में रिट्रेंचमेंट जो है वो किया जाना चाहिए, है ना. हम क्या कर रहे हैं, एक पर्सन को हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने का कह रहे हैं. फिर उसके रीजंस जो है वो क्या हो सकते हैं, लैक ऑफ पावर है, या कोई नेचुरल कैलेमिटी है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है, या परमानेंट क्लोजर एनी किसी भी यूनिट का है, या कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ऑपरेशन जो है वो ही बंद हो गया है. और आउटप्लेसमेंट भी एक तरीका होता है मैनेज करने का. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आपको यहाँ से तो आप चले जा रहे हो, लेकिन आपको दूसरी जगह पे जॉब दिलाने में हेल्प की जाएगी, है ना. तो इसमें क्या है कि अ गुडविल विनिंग द अप्रोच. से फॉर एग्जाम्पल कोई एलजी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना, तो वहां से वो पर्सन को एलजी इज हेल्पिंग टू द पर्सन हु इज लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू दी ओवर सप्लाई, कि आप अब सोनी के अंदर प्लेस हो सकते हो. तो यहाँ पे आपको एलजी का रेफरेंस जो है वो काम कर रहा है. ले ऑफ भी जो है वो परमानेंट और टेम्परेरी इन नेचर हो सकता है ना. क्योंकि आपके पास में इतना टास्क नहीं है लोगों को असाइन करने के लिए, आप एक टेम्परेरी क्लोजर की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन आप लोगों को ये अश्योरेंस देते हो कि जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी, जब फिर से डिमांड जनरेट हो जाएगी, देन वी विल कॉल यू बैक. देन लीव ऑफ एब्सेंस विदाउट पे, ठीक है. यानी आप, ये डिपेंड करता है एक फर्म के रूल के ऊपर, किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पे है. देन उसके बाद में लोनिंग, टेम्परेरी शिफ्टिंग टू द अदर टेम्परेरी शिफ्टिंग टू द अदर इंडस्ट्री. Mainly it is being seen in the government organization. Then work sharing of one job by two employees by operating in shorter shift and getting the less salary. इस वजह से क्या होता है कि एटलीस्ट एम्प्लॉय की जॉब को और दो एम्प्लॉयज को एक साथ हम रिटेन कर पाते हैं. फिर एक तरीका ये भी होता है कि आप वर्किंग आवर्स जो है उन्हें रिड्यूस कर दो, है ना. वर्क लेस आवर्स जो है वो जॉब लॉस और लेस पे के बारे में बात करते हैं, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो हम चीजों को मैनेज कर पाते हैं. वॉलंटरी रिटायरमेंट, इट इज नोन एज द गोल्डन हैंडशेक, और ये किस चीज को टारगेट करता है कि see, abhi there is a huge technological change. For example, there is a huge technological change in the organization, and aging population is very much resistant towards the change. So what will happen in that case? If we are having VRS, so we can ask them to leave early from the organization if they do not want to change themselves. And this is one of the best downsizing technique. And BPCL has also followed this thing when they were during their restructuring thing. Attrition a normal process through retirement, resignation, and long run planning, and there is no time short. ठीक है. Then outsourcing, one ऑफ रिसेंट ट्रेंड टू अवॉइड द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. आउटसोर्सिंग का हम सभी को पता है कि व्हाट इज आउटसोर्सिंग. तो जिस तरह से मार्केटिंग में होती है उसी तरीके से एचआर में भी आउटसोर्सिंग होती है. हम क्या कर रहे हैं कि हमें एम्प्लॉयज का जरूरत है, लेकिन हम परमानेंट हायरिंग के ऑप्शन के साथ में नहीं जा रहे हैं. हम थोड़े टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं. दे आर नॉट गोइंग टू बिकम द परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ आवर प्रोजेक्ट और आवर फर्म. दे विल लीव वंस देयर टास्क विल बी डन. ठीक है. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मॉडल जो है वो आप देखेंगे किस तरीके से काम करता है. हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, प्लान एंड प्रोग्राम्स को स्टडी करते हैं. फिर हम डिमांड फोरकास्ट के बारे में बात करते हैं, जहां हम स्पेसिफिकली स्किल वाइज, नॉलेज वाइज चीजों को एनालाइज करते हैं. फिर हम सप्लाई फोरकास्टिंग के बारे में बात करते हैं, तो प्रेजेंट इन्वेंट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लस एडिशनल माइनस लॉसेस के बारे में बात करते हैं. फिर हमारे पास में नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट जो है वो निकल आती है, और हमें भी पता लगता है कि मतलब हमें फ्यूचर के अंदर किस टाइप के लोगों का जरूरत जो है वो रहेगा. तो अब हम क्या कर रहे हैं, या तो हमें लोगों को निकालना है तो रिट्रेंचमेंट प्लान बनाएंगे. एग्जिस्टिंग लोगों को दूसरे जगह पे क्या एडजस्ट किया जा सकता है, दैट स्पीक्स अबाउट द रीडिप्लॉयमेंट. एंड जब हमारा ये स्टेप खत्म होता है तो हम पहुंचते हैं शॉर्टेज ऑफ, अगर हमारा मतलब शॉर्टेज ऑफ फ्यूचर अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा फिर प्लान भी होता है कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो या इंटरनल मोबिलिटी का एक्शन जो है वो
ले रहे हो. Then forecast the future supply of human resource in all sources of supply. If it is inadequate, then we are adjusting or modify our current plan. So this is about human resource planning model and need of different range of plan. तो demand के according, supply के according, supply of internal labor and supply of external labor, अलग अलग authorities के basis के ऊपर हम अलग अलग type के plans जो है वो बनाते हैं. Short range का duration जो है वो 0 to 2 years का रहता है. इंटरमीडिएट का जो ड्यूरेशन है वो 2 to 5 years का रहता है. एंड लॉन्ग रेंज जो है वो बियॉन्ड 5 years के बारे में बात करते हैं. ठीक है. एंड इट ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग स्टूडेंट्स दैट वी आर ऑलवेज गोइंग टू लिंक business planning with HR planning. Always business strategies will be, HR strategies will be aligned with the business strategies. You can see over here that planning level and horizon. Strategic planning 5 or more years. Intermediate का range आपको पता है, operational का भी पता है, and day to day basis के ऊपर planning का range जो है वो भी आप लोगों को पता है. ठीक है. So when we are talking about business planning process, so here you can say corporate philosophy, value system and policies, goals and objective, key sources, factors, product market scope and competitive edge and allocation of resources, and human resource planning process, analysis of issue raised by external factors, employment demand and projection, manpower supply analysis and projection. Then उसी तरीके से जिस तरह organization evolution है तो forecasting total staffing level के बारे में यहाँ पे बात होगी. अगर हम बात कर रहे हैं detailing of program to specify action responsibility, cost time schedule के बारे में बात हो रही है, organization profitability के बारे में बात हो रही है, तो we are actually detailing the HR activities that are incorporated in 1 year business plan. And the same way day to day and week to week plan for work schedule decentralized through the company. Yes, so HR day to day week to week assignment in support the objective of the business plan. ठीक है. These are the factors, external and internal factors, which are actually making impact on human resource planning, right? Policies and strategies of the company, internal factor. Human resource policy of the company, internal factor. Formal and informal groups, job analysis, time horizon. 3 साल का प्लानिंग है, 5 साल से ज्यादा का प्लानिंग है, 1 साल का प्लानिंग है, डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग है. देन टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, देन कंपनीज प्रोडक्शनल ऑपरेशनल पॉलिसी एंड ट्रेड यूनियंस. ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है बच्चों, ये बात करते हैं इंटरनल, ये फर्म के इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात हो रही है. और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमने एनवायरमेंटल स्कैनिंग में देखा, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, और इंक्लूडिंग द फ्यूचर सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी का लेवल किस तरीके से रहता है. फिर नेचुरल सर्टेन फैक्टर्स के बारे में जब हम बात करते हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स आर मेकिंग इम्पैक्ट है ना, जैसे इससे फॉर एग्जांपल वीजा को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, माइग्रेशन को लेकर के किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह का पॉलिसी चेंजेस जो है वो आया है ना. देन यहाँ से हम इंटरनल फैक्टर्स के बारे में फिर बात करते हैं. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, बेनिफिट्स देखे, हमने लेवल्स देखे, फिर हमने प्रोसेस देखा, फिर हमने डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक्स देखी, सप्लाई फोरकास्टिंग की टेक्निक देखी, फिर हमने एक्शन प्लान्स देखे कि सप्लाई ज्यादा होती है तो हमें किस टाइप के एक्शंस की जरूरत होती है, उसमें हमने रिट्रेंचमेंट देखा, फिर हमने आउटप्लेसमेंट देखा, हमने आउटसोर्सिंग जो है वो देखा, ले ऑफ्स के बारे में देखा, टर्मिनेशंस के बारे में देखा, है ना. और हमने ये भी देखा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सप्लाई का जरूरत होता है और कहाँ तक हम जो है वो इंटरनल सप्लाई के थ्रू काम चला सकते हैं, तो वो कौन से सिचुएशंस होती है, हमने उसके बारे में भी इस चीज को स्टडी किया. then only we were able to reach on this particular conclusion. हमने ultimately we have seen the kind of HRP model. It was a 10-step model जो आपको आपके नोट्स के अंदर दिया जाएगा. Then हमने देखा कि business planning will HR planning will always be aligned with the business planning, and then we were able to see the external and internal factors making impact on human resource planning. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की. एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, आई पर्पसली यूज्ड नोटबुक एंड पेन to make you understand certain formula based things so that you can understand it properly. So thank you so much for listening me, and in next topic we will be talking about job analysis, that will be including job description and job specification. So stay tuned with me. Thank you so much. Have a nice time.